So, hi guys, I hope you all are doing well. So, today we will be starting with our lecture on geometry. And what I have planned is that I will be covering all your basic parts. ठीक है, जितना भी ज्योमेट्री में बेसिक आपको आना चाहिए, that I will cover maybe through a series of two videos. And similarly will be your algebra part where I'll be covering all your functions, inequalities, logarithm and all that part. If you see na that even during my preparation I didn't focus much on these two portions because anyhow if you are targeting somewhere like 97 plus percentile, like especially in the quant part, even if you do your arithmetic right and a bit of geometry and algebra, you will definitely end up scoring this. ठीक है. So what I'll do is कि in this video we will basically start with the geometry and geometry I have planned. So how we will start is कि points बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ जो होती है ना जो आपको आती हैं एंड इफ़ यू नो देर आर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम इसमें से लेंगे या पॉइंट्स जो है इसमें डिस्कस करेंगे. मूविंग अहेड वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ फॉर द लाइन. Then we will talk about the triangle. Then we will talk about the circles. Then we will talk about the polygons. And post the polygons, we will be talking about general formulas for the area and the volume part. ठीक है, तो माई फोकस विल बी ऑन दिस कि अगर आपको पॉइंट से रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ सकता है एंड देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि वन और टू क्वेश्चंस जो है इसका अगर वो पॉइंट से रिलेटेड पूछता है तो मोस्टली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट. तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम जो है बेसिकली टारगेट करेंगे. विल नॉट गो इन वेरी डेप्थ बट या येस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ ही जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द पॉइंट पार्ट. तो पॉइंट में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो यही होती है सिर्फ और सिर्फ आपको दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस निकालना चाहिए. दैट्स इट. अगर फॉर एग्जांपल ये जो है x1 y1 है and this is like x2 y2, so the most important question you'll get is कि what is like the distance between these 2 points, so that you should be aware कि x2 minus x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 इसका होल स्क्वायर and that is the distance that is to be calculated between 2 points. इस पर बहुत ज़्यादा और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट लाइन. लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, अगर किसी भी आपको कोई भी एक यूनिक लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं. चलो, यू नीड अ स्लोप विच इज़ डिनोटेड बाय द m, दैट इज द स्लोप, एंड यू नीड अ पॉइंट. अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं ना सो यू विल बी एबल टू फाइंड अ यूनिक लाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू that this is your graph and there are lines with some equal slope. So equal slope is like we basically do it in the anti-clockwise direction. So there can be multiple lines. There can be multiple lines with a particular slope. But a line that passes from some fixed point, say this is the point, तो that will add to its unique nature. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस स्लोप के साथ होगी और या फिर इस पॉइंट से पास कर रही होगी. ठीक है, सो दिस इज लाइक एन एंड कंडीशन. सो फॉर अ यूनिक लाइन यू नीड टू हैव अ स्लोप एज वेल एज यू नीड टू हैव अ यूनिक पॉइंट एंड दैट विल गिव यू अ यूनिक लाइन. दूसरी बात, इवन if you have 2 points, obviously you can have a unique line as well. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्लोप जो है वो एक्चुअली फाइंड ही ऐसे होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, whereas 2 denotes the coordinate of second point and 1 denotes the coordinate of first point. तो मोर और लेस ये एक ही बात हो गई कि हमें जो है बेसिकली एक यूनिक लाइन फाइंड करने के लिए एक स्लोप और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो चाहिए होता है. ठीक है, so let's talk about the equation of a line. So we are already aware that the equation of a line can be said to be y minus y1 upon x minus x1 is equal to m.
and this is the equation of a line where m denotes the slope and x1 y1 denotes a particular point. ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई इक्वेशन, ठीक है, और जनरली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर देते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना y इस वाली फॉर्म में, तो ये चीज़ जो है द पार्ट दैट इज विद द x उसको हम कह देंगे स्लोप, और इसको हम कह देते हैं द वन दैट इट कट्स एट y पार्ट। देखो, एक चीज़ तो हो गई जो हमने x के साथ रखी है, तो x को हमने इंपॉर्टेंस दे दी। एक चीज़ वो हो जाती है जहाँ पर हमारा जो है जो वो y को जहाँ पे कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइन, ठीक है, और ये लाइन है, तो ये चीज़ जो है ये तो हो गया उसका स्लोप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रही हमारी x एक्सेस, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने डिनोट कर दिया विद द c। अगर आप x को 0 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 0, ठीक है। सो एट वन टाइम वी गेव द इंपॉर्टेंस टू x एक्सेस एंड एट वन टाइम वी गेव द इंपॉर्टेंस टू द y एक्सेस. So these are generally two forms of this is generally the most common form of representing a line. It can also be represented in somewhere like this: ax plus by plus c is equals to 0. This is also the equation of the line, that is the linear line. ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यही दो फॉर्म्स होती हैं किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. पर एक यूनिक लाइन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होता है एक स्लोप और एक पॉइंट, दैट्स इट. ठीक है, चलो, तो हमें जो है ये पता चल गया. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. एक बार सेक्शन फॉर्मूला और देख लेते हैं ना. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो दिस वाज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ लाइन. नाउ हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, यू आर गिवन विद दीज 2 पॉइंट्स एंड नाउ यू आर अवेयर कि भाई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है एंड दिस लाइन इंटरनली बाइसेक्ट्स दिस. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट x1 y1 x2 y2. so there is a line and this line actually bisects this at point say x3 y3 in the ratio m to n. तो अगर आपको x3 या y3 फाइंड करना होता है, सो फॉर इंटरनल बाइसेक्शन दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे क्रॉस चले जाना, दिस इज m x2 प्लस n x1 अपॉन m plus n. Similarly for y3 you will have y3 is equals to m y2 plus n y1 upon m plus n. So this will give you the coordinate for the x point and the y point. Similarly there is also a formula, so this is referred to as internal bisection. Bisection भी नहीं कहेंगे, bisection is actually for the equal part. Internal बाइसेक्टर ही कहते थे कि इंटरनली उसको वो बाइसेक्ट करता है. ठीक है, इक्वली रादर देन इक्वली बाइसेक्शन, तो इंटरनली उसको बाइसेक्ट करता है. सिमिलरली विल बी द केस ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पॉइंट x1 एंड y1 एंड देयर इज x2 एंड y2. सो व्हाट यू डिड इज कि बेसिकली दिस लाइन इज इनफाइनाइट. ये तो हमने इस दो पॉइंट के बीच में कंस्ट्रेंट कर दिया, बट इट कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन. तो इफ दे से दैट a point is bisecting PQ at R externally, so this is x3 y3. ठीक है, in the ratio m is to n. तो इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे ना, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करो कि x3 को एक ले लो एंड y3 को एक ले लो, एंड आप जो है ये मान लो कि भाई x2 और y2 जो है वो उसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, when you will solve and put values here and there, so what you will get is, to remember it out, what you can do is कि ऐसे ही लेना है, सिर्फ just putting a minus sign. so m क्रॉस करेगा इसके साथ, that is similar है m x2 minus n x1 upon m minus n. y3 is equals to, I am not helping you out here with the derivation part, बट अगर आपको ये याद रखना है, जस्ट क्रॉस ले लो इसका.
इवन फॉर द एक्सटर्नल बाइसेक्शन. तो m का इसके साथ एंड n का इसके साथ, एंड दिस वुड बी लाइक m y2 minus n y1 upon m minus n, and this is the formula for the external bisection. अब देखते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे. क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आएगा कि दे विल नॉट आस्क यू कि भैया देयर इज अ लाइन एंड इट बाइसेक्ट्स इन द रेशियो दिस दिस दिस, सो फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट. नेवर. what they will ask you, they will ask you the concept for having a line. So they'll say that there is a line and the slope of the line is this. So you are given with the slope, and this line bisects and another line with these two coordinates x1 y1 x2 y2 in the ratio m is to 9. So now the point is that for that finding that line which they have asked, so you are given with the slope, but for calculating that unique point x3 y3 आपको जो है एक्सटर्नल बाइसेक्शन या इंटरनल बाइसेक्शन का फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, जनरली दो पार्टों को मिलाकर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा पता होना चाहिए लाइन के बारे में कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, for the equation of the line, either you should have 2 points, or either you should have a slope and a point for finding a unique line. ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Okay, so I'm just giving you a question, you solve it for your practice. So the question is something like, a point P, there is a point P and there is a point A like 2 1 and B minus 3 6, and this point actually divides this line in the ratio 2:3. ठीक है, and you have to find, does point P lie on the line x minus 5y plus 15 equals to 0. ठीक है, so this is a question, do it for practice. So there is a point P that actually distributes this line in the ratio 2:3. So using a section formula, internal section formula, find this point. And now this point P is supposed to lie on this. If putting these values you get 0, then obviously it is lying on this line, else not. ठीक है, just do it for your practice. Okay, now moving ahead, so let's move with further few questions. Okay, just a sec. Okay, now the other important concept, so we talked about the section formula, we talked about the equation of the line. Now let's talk about something which is referred to as the angle between the lines. So if you have two lines, ठीक है, if you have two lines, to find an angle between them, the formula that we use is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, so this is like an m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, where m1 and m2 are the slopes of the two lines. And obviously जब ये लाइंस एक दूसरे को कट करती है ना, सो देयर इज अ पॉइंट कि देयर विल बी टू एंगल्स. इफ यू सी कि वन एंगल विल बी दिस एंड वन एंगल विल बी दिस. ठीक है, दो एंगल होंगे यहाँ पे. ठीक है, दो एंगल होंगे यहाँ पे. एंड फॉर द पॉइंट ऑफ द कंसर्न, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इफ यू सी, अगर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों केस में ही, सिंस दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों ही 90 डिग्री होंगे. बट इन केस अगर कोई भी एक 89 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो है क्या होगा, हमारा 91 डिग्री. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक एंगल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्ट्यूस होता है एंड वन एंगल जो है वो ऑब्वियसली एक्यूट होता है. ठीक है, सो टू फाइंड दैट एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे तो हम जो है क्या कर देंगे कि उसमें से माइनस कर देंगे. टू फाइंड दिस एक्यूट एंगल वी डू अ मॉड ऑफ दिस.
ठीक है, तो आप क्या करते हो कि हमने क्या करा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इफ दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ऑब्वियसली, ठीक है, इफ दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन 10 की प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे फॉर द थीटा पार्ट, तो अगर ये नेगेटिव आता है तो इट विल गिव यू एन ऑब्ट्यूस एंगल, अगर ये जो है पॉजिटिव आता है तो इट विल गिव यू एन एक्यूट एंगल। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं, एंड इसलिए हम मॉड करते हैं और फिर उस थीटा को माइनस करके वी कैन ऑब्वियसली फाइंड दी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, द अदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो कहता है कि भैया ये लाइन है एंड एक लाइन जो है, ठीक है, कि एक लाइन जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस, ओके, वेल एंड गुड, तो ये जो है 60 डिग्री, दैट इज आपको जो है टेन थीटा जो है वो पता है कि भैया टेन थीटा जो है इज एक्चुअली 60 डिग्री, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज से कि एम डैश, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा कि एम डैश पुट कर दिया, एंड नाउ आई नीड टू फाइंड दिस 1 प्लस एम डैश इंटू एक्स, and this is the line, and this is the slope of the line. So they said that there is a line with a slope m dash and there is another line that makes an angle of 60 degree. तो you try to find out कि उसका slope क्या होगा. Obviously if you see in this direction, so one line obviously we will be making an angle of 60 degree in this direction, and देर विल ऑल्सो बी एन अनदर लाइन जो कि 60 डिग्री का ही एंगल इस डायरेक्शन में भी उससे बना सकती है। ठीक है, तो देयर विल बी हमेशा दो लाइंस, ठीक है, दो लाइंस जो कि, ठीक है, सी, एक तो उसके जो है इधर, एक तो जो है उसके राइट हैंड, ठीक है, एक तो उसके राइट हैंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है और एक जो है उसके लेफ्ट हैंड पे एंगल बना रही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है मॉड को हटा के यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं, and obviously we end up getting two values for this x, that is 1 and 2 values। ठीक है, समझ आया कि हमें जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल उसने दिया है, बट देयर कैन बी टू लाइन्स मेकिंग सच एंगल, एंड दैट इज वाई वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एम मॉड वॉज। ठीक है, तो अगर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ दोनों स्लोप दिए हुए हैं, एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है, तब भी मॉड का सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करना है। और अगर आपको जो है एक स्लोप दिया हुआ है एंड एंगल दिया हुआ है, तब भी इस मॉड का सिग्निफिकेंस है क्योंकि देयर कैन बी टू लाइन्स। ठीक है, देयर कैन बी टू लाइन्स विद डिफरेंट स्लोप्स दैट विल एक्चुअली बी मेकिंग दिस थीटा एंगल विद दिस। ठीक है, चलिए, and one more thing, so we say that two lines are parallel. We have studied this much, that two lines are parallel if their slope is equal. Tan theta is equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Okay, so obviously two lines will be equal if their, ठीक है, two lines will be parallel if their slopes are equal. कहाँ से आया होगा ये? Parallel lines cannot have an angle between them, that is this is 0 degree, and tan 0 degree we know is 0. This means कि m2 minus m1 is equal to 0, that is m2 is equals to m1. So for parallel lines both the slopes are equal. Moreover, if two lines are perpendicular to each other, so we know this is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, वी नो कि 1090 डिग्री जो है वो क्या होता है 1/0, इस तरीके से होता है 1/0, सो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी 0 एंड दिस इज 1 प्लस m1 m2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स देयर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड दे विल ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एंगल बिटवीन द टू लाइंस, कि अगर इक्वल स्लोप है, ठीक है, आपको एक लाइन दे दी, उसका स्लोप दे दिया, ठीक है, एंड यू आर गिवन कि भाई वो लाइन जो है एक दूसरी लाइन है एंड उस दैट पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो बहुत बड़ा हिंट है, क्योंकि वो पैरेलल है तो उसका स्लोप भी आपको पता है विच इज गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ठीक है,
और पॉइंट आपको पता ही है, सो दैट यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, एंड दिस इज वॉट वी हैड टू डू फॉर दिस लाइन सेक्शन. तो हमेशा एंगल बिटवीन द लाइन्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है, कहाँ पर हमें दो स्लोप मिलते हैं और कहाँ पे हमें ये मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so now we'll talk about another important concept. So we have talked about equation of line, we have talked about the equations of line, section formula, we have talked about the angle between the lines and their significance. Now we'll talk about the distance of a point from a line. Okay, so if there is any line and you have a point, so the shortest distance between that point and that line is given by, for example, like this is the equation of the line. Okay, and this is the point. So the shortest distance will be given by the formula, that is distance is equals to a x1 plus b y1 plus c1 upon under root a square plus b square. And since distance has always to be positive, तो हम इसको जो है हमेशा क्या करते हैं, मॉड कर देते हैं. So this is x1 comma y1 and this is the equation of the line, that is ax plus by plus c equals to 0. Got it? हाँ जी. So that is very important. Now for example, if you are given like a distance, अब मॉड की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है. अब कैसे सिग्निफिकेंस होती है, जस्ट ट्राई एंड सी दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0. मॉड की यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल लाइक सी दिस विल डेफिनेटली गिव यू जस्ट वन इक्वेशन. तो हमने कहा कि देयर इज अ लाइन एंड देयर इज अ पॉइंट समथिंग लाइक दिस. तो लेट्स से कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, दैट इज 5, और उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन इज 3. ठीक है, सो व्हाट वी डिड इज कि हमने यहाँ पे 5 जो है वो ये तो फिक्स है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, 3. ठीक है, सो वी पुट इट बैक इन द फॉर्मूला कि हमने जो है डी को यहाँ पे 3 पुट करा, यहाँ पे हमने जो है मॉड यूज कर रखा है, तो हमने कहा कि a इंटू 5 दैट इज 5a प्लस y जो है वो वेरिएबल है by प्लस c1. ठीक है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करी. हमें पता है कि भाई दो केसेस बनेंगे, सो वी विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ by प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So definitely we'll be getting two values of y. But why is it so? This is because कि अगर आप देखो ना, तो हमें पता है कि भैया ये पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स है कि उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो तो फिक्स है. तो चलो एक y तो आएगा ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज y, तो एक y तो आएगा ये. ठीक है, एक y की वैल्यू तो आएगी ये. सिमिलरली इफ़ यू सी, तो मुझे पता है कि अगर मैं जो है ऐसे आगे बढ़ता हूँ तो वो डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता चला जाएगा. 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 इस तरीके से. ऐसे ही अगर मैं यहाँ से होता हूँ तो लाइन से डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. डेफिनेटली जब ये यहाँ पे जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, जब ये यहाँ पे जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है. अगर आप इसको आगे 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 लेके जाओगे तो अब ये 0 से 3 भी तो होगा कहीं पे जाके. ठीक है, और फिर ये जाके आगे बढ़ेगा भी, तो 1y कोऑर्डिनेट जो है वो ये होगा. सो देयर है y, दिस इज वाई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ से डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ से डिस्टेंस y हो रहा है. ठीक है, सो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ y एंड दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस इज. ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, अ बिट कॉम्प्लेक्स पार्ट, बट यू शुड बी एबल टू गेट इट कि मॉड की वजह से हमें दो वैल्यूज ऑफ y जो है वो क्यों आ रही हैं. ठीक है, एंड दे प्ले वेरी स्मार्ट. दे माइट नॉट गिव यू दिस वैल्यू बट दे विल गिव यू दिस वैल्यू. तो आपको दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, बोथ इन द केस ऑफ द डिस्टेंस एज वेल एज बोथ इन द केस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ठीक है, चलिए नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड विल जस्ट रैप अप विद दिस लाइन पार्ट. ठीक है, ओके.
So the question is, what will be the distance between two lines, that is 5x plus 3y plus 6 equals to 0 and 5x plus 3y minus 6 is equals to 0. Find this distance by using the distance between two line formula. Leave it. ठीक है, we'll use it in one way. Okay. So what we know is, what we are able to see is कि these are actually parallel lines. अगर आप इनको convert करोगे ना, so this will be like कि y equals to minus 5x by 3, ठीक है, minus 2. एंड दूसरी वाली इक्वेशन को अगर आप कन्वर्ट करोगे, सो दिस विल बी लाइक माइनस 5x बाई 3 प्लस 2. तो सिंस देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो ये लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस है. सो दैट इज फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन 1 टेन थीटा कि m1 इज इक्वल्स टू m2, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो दैट इज वाई दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ठीक है, दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं. सो वी बेसिकली नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस. तो हमने क्या करा, देखो वो दोनों पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली आप कोई भी पॉइंट लो, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा. तो मैंने कहा कि इस लाइन पर से एक पॉइंट लाई करता है एंड दिस पॉइंट इज x1 y1. ठीक है, x1 y1 जो है वो बेसिकली एक पॉइंट है जो कि इस वाली पैरेलल लाइन पे लाई करता है. तो ऑब्वियसली अगर हम इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट विल बी 5x1 प्लस 3y1 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9. ठीक है, दिस विल बी द डिस्टेंस. बट डू वी गेट एनी रिजल्ट? नो, वी डिड नॉट. अगर आप देखोगे, सिंस इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दिस इज अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, तो 5x1 प्लस 3y1 प्लस 6 शुड इक्वल्स टू 0 एज वेल. मतलब 5x1 प्लस 3y1 की वैल्यू जो है वो क्या है, -6. तो यहां पर हम उसको रखेंगे -6 एंड दिस विल बी लाइक अंडर रूट 34. सो दिस विल बी 12 अंडर रूट 34 इज द डिस्टेंस बिटवीन योर लाइन्स. एंड दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. अगर आप देखो ना, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी. हमें जो है सिर्फ और सिर्फ हमने एंगल की मदद से ये देखा कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, और फिर हमने जो है इन दोनों के स्लोप्स जो है इक्वेट करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया. सो दैट इज ऑल यू हैव इन लाइंस में इसके अलावा आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, हाँ. तो यू विल हैव दीज 3 लाइन्स. तो आई जस्ट रैप इट अप विद द लाइन पार्ट बिकॉज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम जब जो चीज़ें करेंगे ना, दैट विल हैपन वेरी क्विकली, बट दिस इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो है पॉइंट में हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा. लाइन में हमने जो है ये देखा कि स्लोप एंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट कि 2 पॉइंट से भी इंपॉर्टेंस है. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन फॉर्मूला. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स. एंड उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन. एंड दिस इज ऑल you have from the line part. And now we will be moving ahead, and let's now we have to cover a lot of things. ठीक है, a lot of things we need to cover, but chalo, so we'll cover it out na. I was thinking of making another video, but let's cover it out here only. ठीक है, okay. So let's talk about triangles. ठीक है, let's talk about triangles. You will have a whole lot of properties about triangles. Never learn them. ठीक है, सबसे पहली बात, हमें जो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकलता है. नॉर्मल एरिया का ट्राइंगल हमेशा ऐसे निकल देगा कि सबसे पहली बात, यू विल कैलकुलेट द सेमी पैरामीटर. सो दिस इज द पैरामीटर. इफ यू डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी अ सेमी पैरामीटर. And then you use a hero's formula. So this is like S, and this is like S minus A, S minus B, and S minus C. And this is called as the area of triangle. So this is called the area of triangle. So where A, B, and C are the sides of these triangle. So always remember this कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे कभी भी कोई कैलकुलेट करने के लिए कहता है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला.
A very important thing is कि then there is a right angle triangle. So for a right angle triangle A, B and C, area is given by the formula that is half into base into height, that is this is the base and this is the height. So area for a right angle triangle is given by this formula. Whereas if you have an equilateral triangle, तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ये होते हैं ना, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्राइंगल होते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है. इफ़ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दिस ना, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉप कर दो तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है, सिंस दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा आपका a/2 सिंस इट वॉज बाइसेक्टर. This is obviously A, and now if you use hypotenuse theorem, so this will be A square, this will be A square by 4 and this will be like perpendicular जो हमने थ्रो करी है उसका स्क्वायर. तो perpendicular का स्क्वायर will be given by 3A square by 4. Now you are, ठीक है, now you can use this formula half into base, so base is half A/2 into perpendicular क्या है 3A square by 4. तो इफ़ यू सी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपका आएगा दिस इज लाइक द स्क्वायर, तो इसका आपको रूट करना पड़ेगा. सो दिस विल गिव यू समवेयर लाइक, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस विल गिव यू √3A square by 8. And since you are talking about the area of this entire part, so this will also be same. So you will multiply it by 2 and this will be like √3A square by 4. So this is the area of the equilateral triangle. ठीक है, तो यही हमारे पास ट्राइंगल होते हैं. अगर कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है तो हमेशा यही दो फॉर्मूलेज आप यूज़ करना. इफ़ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल ये यूज़ करना. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू लाइक कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हम इस पर थ्रो कर रहे थे, या फिर आप जो है डायरेक्टली इसको भी लर्न कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट अ ट्राइंगल. ओके, नाउ ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो देयर आर एक्चुअली सम पॉइंट्स दैट यू हैव इन द ट्राइंगल. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वंस एंड देन आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दोज पॉइंट. तो सबसे पहला, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ ट्राइंगल एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. मीडियंस आप समझते हो कि भैया इससे मैंने एक लाइन फेंकी एंड उसने जो है इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया. मैंने इससे एक लाइन फेंकी, इसने इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया. मैंने इससे एक जो है लाइन फेंकी और इसने जो है इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया. इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड. ठीक है, और सेंट्रॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है, ठीक है, सेंट्रॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि ये इसको वर्टेक्स से लेकर टू द बेस 2:1 के रेशियो में जो है डिवाइड करता है. ठीक है, बस जैसे फॉर एग्जांपल ये है एंड दिस इज लाइक सेंट्रॉइड जो है वो G है एंड दिस इज लाइक D, तो AG इज टू GD विल ऑलवेज बी 2:1. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई नहीं है. आपको पता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट आएगा. अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो ऑब्वियसली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो. ये कोऑर्डिनेट आपको पता ही है तो आप जो है, आपको पता है 2:1 का रेशियो है, तो आप जो है इसको भी फाइंड कर सकते हो. तो सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि वो जो है वर्टेक्स से लेकर जहाँ बेस पे टकराता है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. So what is centroid is clear. What is the most important property of centroid is clear. Next is orthocenter. So what is orthocenter is, let's talk about orthocenter. आप ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई नहीं होती. ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स टू द लाइन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर थ्रो करा.
ठीक है, मैंने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर जो है वो थ्रो करा, और मैंने जो है इस लाइन पर जो है एक परपेंडिकुलर थ्रो करा, एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दोज परपेंडिकुलर्स इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर. Just remember this word, point of intersection of the perpendiculars to all the lines of the triangle is called as orthocenter. No important property, leave it. Then we have circumcenter. So what is circumcenter is, no important property, no significance as far as the cat is concerned. Let's talk about circumcenter. So what is circumcenter is the point, it is a combination of centroid as well as the orthocenter, the point of intersection of the perpendicular bisectors. तो ये परपेंडिकुलर भी है प्लस ये जो है इनको बाइसेक्ट भी करता है, ये परपेंडिकुलर भी है प्लस ये जो है इनको बाइसेक्ट भी करता है, ये परपेंडिकुलर भी है प्लस ये इनको जो है बाइसेक्ट भी करता है, एंड दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्क्यूमसेंटर इज. ठीक है, एंड वाई इट इज कॉल्ड सर्क्यूमसेंटर, क्योंकि अगर एक बार आपको ये पॉइंट मिल गया ना, तो ये बेसिकली इसके अराउंड आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो जो इसको वर्टेक्स से पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट कर लेगा, बस. ठीक है, दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट शुड बी क्लियर टू यू कि इसको सर्क्यूमसेंटर क्यों कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी भी सिग्निफिकेंस नहीं है. सिमिलरली यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एन इन सेंटर. तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज, नाउ इफ देयर इज, ठीक है, द पॉइंट ऑफ दी, देखो जो होता है ना कि एंगल बाइसेक्टर, जो भी एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको इन सेंटर कहते हैं. इन सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा एक पूरा का पूरा जो बाउंड्रीज को टच करता है सर्कल ड्रॉ हो जाता है. सिर्फ और सिर्फ यही सिग्निफिकेंस थी. सेंट्रॉइड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट. आपको ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. Now the very important question that can be framed from this is, always remember, this is very important, very important. Always remember, for a right angle triangle, for a right angle triangle, orthocenter is intersection of बेस एंड हाइट. बेस एंड हाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर होगा. ठीक है, सर्क्यूम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्क्यूम सेंटर. दैट इज, जो सर्क्यूम सेंटर होता है वो इसको क्या करता है, वो इसको बीच में से डिवाइड करता है. जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो आपको सर्क्यूम सेंटर भी पता है. थर्ड पॉइंट, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर lie on the same line, lie on the same line with circumcenter dividing orthocenter and circumcenter, just a second, with centroid dividing orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है. राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखना ऑर्थोसेंटर जो है वो यही पॉइंट होता है. तो अगर आपको कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको जैसे ही ये कोऑर्डिनेट पता चलेगा यही आपका ऑर्थो सेंटर है. अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता हैं, दैट इज ए, लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो सी इज द ऑर्थो सेंटर. मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला यूज करना 1:1 के रेशियो में, दिस विल गिव यू द सर्क्यूम सेंटर. 2:1 का फॉर्मूला यूज करना, आपको जो है सेंट्रॉइड भी मिल जाएगा. यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वेदर इट इज़ अबाउट द सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड. ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने और डिस्कस करा है, आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड रैप अप दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली. सो हियर इज द क्वेश्चन.
what is the distance between orthocenter and circumcenter? Okay, distance between orthocenter and circumcenter of a triangle whose side measure, very good question, whose side measure 24, 26 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो आपको जो है बेसिकली उसका ये फाइंड करना है. नाउ अ वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन वॉज कि दिस इज एक्चुअली अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि 24 का होल स्क्वायर इज 576, 10 का होल स्क्वायर इज 100 एंड दिस विल गिव यू 676. So obviously we have a right angle triangle with this as 24, with this as 10 and maybe this as 26. So this is a right angle triangle. So what is the distance between the orthocenter and the circumcenter? तो हमेशा हमें पता है कि भैया सर्क्यूमसेंटर जो है वो तो हमेशा यहाँ पे लाई करेगा और ये जो है वो हमेशा यहाँ पे लाई करेगा. हमने जो है इसको एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया. तो हमने कहा कि लेट्स से ये जो है ऑर्थो सेंटर है. तो हमें पता है कि ये जो है हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा जो है सी पॉइंट है और 24 ऊपर जो है वो हमारा ए पॉइंट है. एंड दिस इज आर ट्राइंगल ए बी सी. ये हमें पता था कि भैया ये जो है 0,0 है, दैट इज ऑर्थो सेंटर. तो हमें पता चल गया. विल बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस वी नो इज 0,24. दिस वी नो इज 26,0. Sorry, this is 24,0 and this is nothing but, see, this is 10. ठीक है, this is 10, this is 24 and this is 26. We know कि this is 10,0. We know this is 0,24. तो we know कि mid point जो है वो कैसे आएगा? Mid point will be this plus this by 2. So this is 5 and this is this plus this by 2. So this is 5 by 12. नाउ इफ वी डू कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो दो पॉइंट्स के बीच में. सो वी नो कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट रूट 169 एंड दैट इज नथिंग बट 13 आंसर. सो 13 विल बी योर आंसर. 13 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्क्यूम सेंटर. Very important question. The only significance they have is for a right angle triangle, otherwise leave the question because calculating them will be a very hard task. Just remember the properties that we have learned for this. We have learned going ahead for this right angle triangle part. ठीक है? Okay. Last but not the least, we have polygons. So polygons we will talk about a lot. कि पॉलीगन्स में रोहम्बस एंड ऑल नेवर डोंट लर्न अबाउट देम इन मच डिटेल्स. ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में आपको इनका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द वेरी पॉपुलर वंस. तो इनका हम जो है एरिया एंड वॉल्यूम में थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे. दैट इज अबाउट द एरिया एंड द एरिया वगैरह. ठीक है, एरिया क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है. ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इस तरीके की चीज़ें. बट फॉर द पॉलीगन्स जस्ट रिमेंबर दिस कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, sum of all interior angles is given by 2n minus 4 into 90 डिग्री. ऑब्वियसली कि अगर वो एक रेगुलर है, रेगुलर मतलब हर एक एंगल जो है वो बराबर है, तो रेगुलर एंगल विल बी, तो हमें जो है सिर्फ 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई n कर देना है. ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, all exterior angles is always equals to 360 degree. It is not dependent on the side, and regular exterior angle will be 360 degree by n. Just remember these two things about the polygons. ठीक है, just put this n actually denotes the number of the sides. Once you are aware about the number of the sides, just use these formulas. So sum of all interior angles will be given by this. रेगुलर एंगल रेगुलर है तो ईच एंगल विल बी गिवन बाय दिस. सिमिलरली फॉर द एक्सटीरियर एंगल्स एंड दिस. ठीक है, तो जस्ट आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस. सो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, दैट इज एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज द एंगल साइड एंड ऑल इज 306 डिग्री. तो सम ऑफ all regular angles, so n would be,
सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस आउट. ठीक है, यहाँ पे ये सीधा सीधा फॉर्मूला पुट इन करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, एंड दैट इज ऑल वी हैव in this video. So we have covered a lot of things. So for this the geometry part, we have covered the point, we have covered the line, we have covered the triangles, we have covered the polygons. Now in the next video we'll be focusing upon circles, a bit on circles, and then we'll be talking about general area and volume part. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है, इट वॉज बिट क्विक बिकॉज हमें थोड़ा सा एक रिविजन पार्ट ही करना है. पर यू विल गो अगेन एंड अगेन, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स, एंड डेफिनेटली यू विल एंड अप स्कोरिंग गुड इफ questions come from these categories. Okay, thank you, see you in the next video.